हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की। सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स सी व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म ए particular task. So what is function? Function is used to perform a particular task or individual task, right? Let's see in detail what is function. So large programs are sometimes often difficult to manage. Thus large programs are divided into small units known as function. Right? So what is the meaning of this line? So while we write the program, sometimes if a program is very lengthy, then it is very difficult to manage or understand for a user. So to divide a large program into smaller units is known as functions. Right? थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे. You can say it is simply a group of statement under any name, that is function name, and can be invoked from other part of the program. हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स का ग्रुप है जिसका एक नाम होता है और हम उसे कॉल कर सकते हैं फंक्शन के किसी दूसरे पार्ट से. So let's take one example. So take an example of school management software. In this software, it may contain various tasks like registration of student, fee collection, library book issue, TC generation, result declaration, etc. etc. हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं. सपोज कोई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल टास्क हो सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैन पे द फी, student can issue the book, students TC can be generated, students result can also be declared. So in this case we have to create different functions for each task to manage the software as a whole. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर टास्क के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेटेडली वर्क करे और जो मेरी होल टास्क है वो क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है. तो फंक्शन क्या है? हम बोल सकते हैं फंक्शन इज ए block of organized reusable code that is used to perform a single related action. मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन एक organized block of code है that can be reused and it can be used to perform a single action. So our program may contains more than one function and each function is used to perform an individual task, right? Or we can say function provide a high degree of code reusing. Means functions provide reusability. What is the meaning of reusability? इसका मतलब है कि जो हमने कोड लिखा है उसे बार बार यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. फॉर एग्जांपल सपोज मुझे कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार नीडेड है अपने प्रोग्राम में कुछ एक्शन परफॉर्म कराने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोज लाइन ऑफ कोड दैट आर यूज्ड that may be used again and again. So those code of lines I may place inside a function, and instead of writing so many lines I will invoke that function. जब मैं फंक्शन को यूज करता हूँ उसको बोलते हैं इन्वोक करना है, फंक्शन को कॉल करना. तो उतनी लाइन का कोड लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ. सो दिस कॉन्सेप्ट इज फंक्शन रीयूजेबिलिटी और कोड रीयूजिंग. सो फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वी कैन रीयूज अवर कोड, राइट. और अगर हम कोड रीयूज कर सकते हैं तो क्या करेगा, इट saves our time, it saves our crucial time to write and code, it provide, it increase efficiency of programming, it creates reliability among programmers. So these are the advantage of functions. Now let's see, function is mainly divided into three types. What are those types? Number one is built-in function. So what is built-in functions? Built-in function वे function है
जो पहले से ही डिफाइंड है पाइथन के अंदर, एंड डायरेक्टली वी यूज दोज फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन आप यूज करते हैं, इवेल फंक्शन आप यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, डायरेक्टली वी आर यूजिंग दीज फंक्शंस। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है फंक्शंस की, वो आती है फंक्शंस फ्रॉम मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल मैथ एक मॉड्यूल है, तो मुझे अगर मैथ के सारे फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं तो मैं क्या करूं, मैं अपने मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लूंगा। कैसे मैं इंक्लूड करता हूं मैथ मॉड्यूल को, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, इंपोर्ट स्पेस मैथ मॉड्यूल नेम, देन सपोज आई टेक ए वेरिएबल num and its value is 4 and I will print math dot square root. This is the method of math module, and inside that I will pass the value num. So what it will print? It will print the value of square root of num. Num is 4, so it will print the square root of 4. So this is called functions from module. और जो थर्ड कैटेगरी है मेरे पास, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शंस जिन्हें हम क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ आवर्स, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर टास्क, based on our problem. Now let's see the function syntax. function का syntax क्या होता है? each functions start with def keyword. जब भी हम function create करते हैं तो सबसे पहले def keyword आता है. def is a keyword which is used to show the function's definition, which introduce the function definition. def is a keyword. what is def? def is a keyword which introduce a function definition. इसका मतलब ये है कि हमारा जो जैसे ही डेफ मिलेगा पाइथन इंटरप्रेटर को, उसका मतलब है कि हमारी फंक्शंस की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही। डेफ इज फॉलोड बाय फंक्शन नेम। डेफ के बाद क्या आता है? फंक्शन नाम आता है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस नेम होता है। ये इसमें आप कोई भी फंक्शन नेम दे सकते हो। इसके रूल्स वही रहेंगे जो जनरली इसके जो नेमिंग कन्वेंशन है जनरली फंक्शन में, वही पाइथन की नेमिंग कन्वेंशन है। पाइथन का फंक्शन का नाम क्या होगा? और inside this parenthesis, these are parentheses, this round bracket are called parentheses. Inside parentheses we pass parameters. Parameters means number of value that are needed to perform our task. So what is this? So this is input parameter is placed within the parenthesis and is also defined parameter inside the parenthesis. इसका मतलब वही है कि फंक्शन को जो पूरी टास्क परफॉर्म करने के लिए जिन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, दोज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, राइट? डेफ फॉलोड बाय फंक्शन नेम। आफ्टर फंक्शन नेम इनसाइड ब्रैकेट वी राइट पैरामीटर्स। इट में कंटेन्स पैरामीटर्स और इट में नॉट कंटेन एनी पैरामीटर्स, ठीक है? देन फंक्शन नेम followed by parenthesis followed by colon. This is called colon. What is the meaning of colon? Colon is used to provide indentation. ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का क्या मतलब है? इंडेंटेशन का मतलब है जैसे ही कोलन मिला, हम इंडेंटेशन वहां यूज करते हैं जहां पर मेरे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं। मैं इंडेंटेशन कब यूज करता हूँ? इंडेंटेशन तब यूज होता है जब मेरे पास एक लाइन से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में। और फंक्शन के अंदर जैसे ही ये कोलन मिला, इसका मतलब क्या है? द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट। जो मेरा मेन कोडिंग जो फंक्शन की टास्क होगी वो कहाँ के बाद किसके बाद लिखी जाएगी? कोलन का मतलब है कि नाउ द मेन टास्क ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं वो आएंगे यहाँ पर, और लास्ट में मिलेगा रिटर्न। रिटर्न यहाँ पर ऑप्शनल है। ए फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, इट इज एन ऑप्शनल। ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, राइट? ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। इसमें थोड़ा आगे देखते हैं, ये वही है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड डेफ फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। एनी इनपुट parameters or arguments should be placed within these parentheses. We also define parameter inside parentheses.
जितने भी आर्ग्यूमेंट या वैल्यू जो फंक्शन की टास्क परफॉर्म करने के लिए नीडेड है वो सारी पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, उन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद ए कोलन। जो मेन कोडिंग है फंक्शन की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कोलन के बाद स्टार्ट होती है। और कोलन कोलन क्या करता है? इंडेंटेशन प्रोवाइड कराता है, राइट। एंड इन लास्ट एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। सो ये था कि फंक्शन है क्या, फंक्शन का क्या सिंटैक्स है, और फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, और जनरली फंक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, राइट। सो आई होप you understood these concepts about functions. So in next video we will cover different types of user defined functions. Thank you for watching this video.